To all, I welcome you all in today's session about effective communication skill. In today's area, many people facing a problem in communication skill. They have enough knowledge, so today's session is all about how you can do effective communication. Without wasting much time, here I would like to welcome our today's speaker, Mr. Neeraj Nanda sir. On behalf of Parul Polytechnic Institute, Parul University welcome you sir. Thank Today you. Today, give a quick introduction about our speaker. I would say he is a director at the Business Booster Enterprises. He is a great experienced person. And now we are ready to start our session. Over to you, sir. Thank you very much, madam. Thank you very much. So, good morning to all of you. I'm Neeraj Nanda, and thank you very much to Paroj University for giving me this opportunity to start this, to take the session on groom your personality with effective communication. And what is communication? Anybody who can share this? What is communication? See, basically, communication plays a very, very crucial role in the daily life. It reflects your the complete personality. Whenever you speak, it makes a lot of difference. जैसे कहते हैं ना कि बोलने से आदमी का इंप्रेशन बनता है, तो बोलना it makes a lot of difference. बेशक आप कुछ भी कपड़े पहने, whatever you wear, that doesn't make any sense until or unless you talk something sensible. So communication is simply it's a two-way process. हम direct उसके system पे जा रहे हैं. Communication is simply a two-way process where the exchange of ideas, information, or transmitting the verbal or non-verbal messages are concerned. And communication के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कम से कम दो लोगों का होना बहुत जरूरी है. एंड सेकेंड थिंग इज उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस बहुत जल्दी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. If you want to influence someone, your behavior makes a lot of difference. How you are going to talk with that person, whether there is some voice modulation or not in that, these things make a lot of difference whenever we talk with someone. Second thing is expression of thoughts. आपके दिमाग में जो भी चीज चल रही है, आप उसको किस कॉन्फिडेंस के साथ, किस लेवल के ऊपर you're expressing your thoughts, your views to the person who is standing in front of you, or if you're talking on phone. तो ये जो चीजें होती हैं एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मींस व्हेनेवर यू आर शेयरिंग द थॉट. वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज इमोशंस थ्रू वर्ड्स एंड एक्शंस. देखो, कम्युनिकेशन जो होता है ना, दो प्रकार का होता है. एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, जिसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग फ्यूचर. लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इमोशंस हम वर्ड्स और एक्शंस दोनों के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर जैसे किसी के साथ हमारा झगड़ा हो गया, तो वी कैन शो अ स्लैप. और अगर हम किसी को अप्रिशिएट करना, सपोज वी वांट टू मींस मेनली वी वांट टू अप्रिशिएट समवन, वी कैन शो दिस थंब, we can show the victory. These are the emotions which we can show to someone, and we can impress anyone with that. So communication has a series of experiences. Various तरीके से ये चीज कवर होता है, जिसमें एक आता है हियरिंग, एक आता है स्मेल. अगर हमको स्मेल आ रही है तो वी डेफिनेटली डू लाइक दिस. हियरिंग में हम उसकी तरफ सुनने की कोशिश करते हैं. टच, अपार्ट फ्रॉम दिस स्मेल, टच एंड टेस्ट, even seeing also, these things shows the complete series of experiences जहां से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस को. Now, what is communication process? See, communication, as I told you, it is between the two persons. जो दो लोग होते हैं, उसमें जो पहला होता है, जो कम्युनिकेट करता है मैसेज, उसको बोला जाता है सेंडर. दिस सेंडर इज द पर्सन who talk or who conveys the message in a form which is verbal or non-verbal. वो चीज कोड लैंग्वेज भी हो सकता है, जब तक हमें वो भाषा समझ नहीं आ रहा है. दैट इज अ कोड लैंग्वेज. आई थिंक यू मस्ट हैव रेड समवेयर कि एक कोड लैंग्वेज होता है. फॉर एग्जांपल, अपनी जो मिलिट्री है, आर्मी, तो समटाइम यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज कि उन लोगों ने कुछ मैसेज टेररिस्ट के डीकोड किए. डीकोड किए मींस व्हाटएवर इज देयर, द कंप्लीट कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन इन बिटवीन द टेररिस्ट. उनकी जो लैंग्वेज होती है, उसको ये लोग डीकोड करते हैं. कौन? हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आर्मी के. सो दे डीकोड द मैसेज ऑफ द सेंडर. तो एक तो हो गया सेंडर. दूसरा इसमें आता है रिसीवर, जिसके पास मैसेज जा रहा है. सो दैट रिसीवर डीकोड्स द मैसेज.
अभी सेंडर ने एक मैसेज भेजा टू विच वी कैन कॉल इट एज एनकोड, और रिसीवर ने उसको डीकोड किया, लेकिन ये डायरेक्ट डीकोड नहीं होता है, इसके बीच में देयर आर सम प्रोसेस। नाउ व्हाट आर दोस प्रोसेस? किस एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू वो चीज जाएगी रिसीवर के पास, and that is called as the medium. Now this medium can be verbal or non-verbal. Verbal होता है जब, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, this is verbal. If I talk something through a WhatsApp, through a mail, through some gestures, that thing will come under non-verbal. तो ये जो चीज है, these are the basic barriers which comes in between. अगर आपका verbal communication clear नहीं है, then there is a barrier of mainly the verbal communication. If your message is not clear even to gestures, then it means then again it becomes a barrier. So these things should be crystal clear whenever we are conveying something to a receiver. Now, when you have sent a message to a receiver and receiver decodes the message, it means your communication is complete, but complete up to conveying the message to the receiver. But when receiver responds back to the sender, then the complete communication cycle is considered as complete. जब तक सेंडर ने रिसीवर को भेजा और रिसीवर यस 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 करता रहा, तब तक वो वन वे प्रोसेस चलता रहा. बट द मोमेंट रिसीवर रिप्लाइज बैक और गिव अ फीडबैक और अ रिस्पॉन्स टू द सेंडर, then it is considered as the complete communication cycle, and which is considered as the complete communication cycle. So communication जब भी हम किसी से करते हैं, एक चीज को हमेशा दिमाग में रखें, and that is कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ आए. Suppose you are talking in Tamil language. The person who is standing in front of you, he is from Gujarat or Punjab. He cannot understand that language. It means whatever you are speaking, वो उसके लिए code language हो गया. लेकिन if the receiver can understand your Tamil language, it means now he is decoding your language. And when he can decode the language, it means the communication cycle is under process. And if that person replies back, that receiver replies back to the sender, the complete cycle of communication is considered as complete communication cycle. So this is what is called as the communication process. एक चीज communication में हमेशा ध्यान रखें, whatever you are speaking, the person should understand who is standing in front of you. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. दिस इज कॉल्ड द कंप्लीशन ऑफ साइकिल. अभी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको बोला. इसमें पहला आता है इसके अंदर वर्बल, अनदर इज नॉन वर्बल. एज आई टोल्ड यू कि अगर हम जो कुछ बोल रहे हैं विच इज ऑडिबल और विच इज विस्परिंग इन द विस्पर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज वर्बल. मतलब बोलना, बोल के जो चीज की जाए उसको बोले वर्बल कम्युनिकेशन. एंड द सेकंड वन इज non-verbal, where expressions are considered, gestures are considered, that is called as non-verbal. Both plays a very, very important role in communication. And for your information, you are the future managers of the companies. In case के अंदर, whenever you are going to give some presentation in front of the people, just keep one thing in the mind, that your communication should be verbal as well as non-verbal. अगर ये दोनों चीजें आप मिक्स करके कभी भी कम्युनिकेट करेंगे, it will make a lot of difference. Now there are few barriers of communications जो काफी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, plays a very crucial role. और उसमें फर्स्ट होता है noise. Whenever we are talking with someone on some important matter, keep one thing in the mind कि डिस्टर्बेंस आसपास नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी हम फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फोन के ऊपर अगर पीछे से आप ट्रैफिक में मीन्स मार्केट में या ट्रैफिक में खड़े होकर बात कर रहे हैं, द पर्सन ऑन द अदर साइड विल नॉट अंडरस्टैंड. तो आपने बोला कुछ, या तो उसको कुछ और समझ आएगा या उसको इनकम्प्लीट मैसेज मिलेगा. सो अवॉइड दैट. नॉइस इज वन ऑफ द बैरियर विच वी शुड टेक केयर ऑफ. सेकेंड इन दिस इज इनएप्रोप्रिएट मीडियम. इनएप्रोप्रिएट मीडियम मतलब जहां जिस मीडियम की जरूरत है आपने उस मीडियम में वो बात नहीं की, वेदर इट इज वर्बल और नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में कौन सा मीडियम चाहिए था, आपने वो मीडियम नहीं पकड़ा. अगर हम कोई चीज किसी को मेल से बता सकते हैं कि हमको उसको मेल भेजना है, फॉर एग्जांपल इन द कंपनीज मैक्सिमम थिंग्स आर डन थ्रू मेल्स. अगर हमने जो चीज मेल से भेजनी है, आप वो चीज वहां पे व्हाट्सएप से भेज रहे हैं, दैट वॉन्ट बी अप्रिशिएटेड. Or if you're going in the cabin of your senior to convey something, maybe possible that is not the right way, because when mail is there, why you're coming to my cabin? Okay, so you must know the right medium, through which medium you have to convey the things. Then misconceptions.
अपने हिसाब से कुछ भी सोच ले, गलतफहमी पैदा हो जाना, एज्यूम कर लेना चीजों को, ये चीजें दे ऑल्सो प्लेज अ बैरियर इन द परफेक्ट कम्युनिकेशन. देन इमोशंस. When there are emotions, there are chances that people may take the wrong decisions. So that is the reason to the managers it is always said you have to be professional. आप कभी भी बायस नहीं होंगे. बायस आदमी कब होता है? जब उसमें इमोशंस पैदा होती हैं, और जब इमोशंस पैदा होती हैं तो कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस भी आते हैं. So this also plays a very very important role in the case of communication. Language differences, yes, as I told you just now, Tamil and Gujarati. So if you don't know a language, try to find out the solution for that. You can try to interpret the things, but in a right sense. So language differences, again, it plays a barrier. Next is poor listening skill. Poor listening skill is very very crucial. इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे. कुछ लोगों में क्या, they do not have the patience, whenever they talk, they just want to talk, they don't want to listen anymore. So the perfect, it's one of the tip that whenever we want to go for effective communication, we should be a good listener also. All the senior management people in any company, they have an excellent, listening skill, and they never express anything on that, but they listen calmly whatever you are speaking. It is required. If you want to grow in the life, in the life, you must have a good listening skill, because it is required at each and every step of your career. Distraction. You should not be distracted by the surroundings. You should not be distracted by the current atmosphere, current environment of the company or surroundings. If you are focused on one thing, you must take the decision on that basis only. Now, what are the most common ways we communicate? First one is spoken words. जो कुछ हम बोल रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है सामने वाले को, हाउ यू आर टॉकिंग. सेकंड एंड दिस इज बॉडी लैंग्वेज. अभी आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी के साथ झगड़ा कुछ भी नहीं होता, बात कुछ नहीं होती, बट द मोमेंट यू विल पॉइंट द फिंगर ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, द कंप्लीट द एनवायरमेंट, द कंप्लीट एटमॉस्फेयर विल चेंज. द मोमेंट यू विल पॉइंट द फिंगर, जब तक आप मुंह से बात कर रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे ही आपने उंगली किया, सामने वाले की तरफ पॉइंट किया उंगली, तो पूरा का पूरा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है. सो स्पोकन वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज. Another thing, and this is the visual images, what you want to convey, that also makes a difference. And written words. ये जो सारी चीजें हैं, they play a very very important role whenever you want to convey something. And what I mean to say is कि आप जब भी कुछ बोलते हैं, अगर उसके साथ perfect body language है, it makes a lot of difference to convince someone, to make a dent in the mind of the person कि हाँ, ये जो सामने मेरे आया ना, इसकी कुछ अलग ही पर्सनैलिटी है. तो इट शुड बी पॉजिटिव. नाउ द थिंग इज, communication does not depend only on the words. On the other side, it can also be through your body language and your tonality. आपका बोलने की टोन कैसी है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी ये देखिए सामने हमने एक पिक्चर रखा है. बच्चे को मदर की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती है. कीप दिस थिंग इन द माइंड. द न्यूली बॉर्न द चाइल्ड, he cannot understand anything whatever you talk, whatever you are talking, or even the mother. But बच्चा जो है वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से पहचानता है, क्योंकि मदर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बच्चे को अपनी तरफ मैग्नेटाइज कर लेती है. एंड द वे शी टॉक, उसकी जो टोन होती है वो बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इसीलिए बच्चा हमेशा मदर को ढूंढता है. जैसे ही मदर आई, ही फील्स हैप्पी. ओके, आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, वो माँ की गोद में जाके शांत हो जाता है. कोई अननोन पर्सन आता है, उससे वो डर जाता है. क्यों डरता है? क्योंकि उस समय जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो उससे नई होती है. जो आवाज उस नए आदमी के से निकलती है, द वे ही टॉक्स, उससे वो घबरा सकता है. तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा रोने लगता है. रीजन इज ओनली दैट. So this is the thing where the body language and tonality makes a lot of difference. Words are not the only solution to give a very effective communication. You have to show your perfect and effective and impressive body language as well as your tonality. One sentence, I'll just show you one very interesting sentence where the tonality can make a lot of difference. It makes a very big difference.
देखिए अब ये आपके सामने एक सेंटेंस रखा है, इसमें जो से है इसको मैंने बोल्ड में लिखा है। यू कैन नोट डाउन द सेंटेंस, और जो चीज बोल्ड में लिखी है ना, आप उसको थोड़ी ऊंची आवाज में बोलेंगे अगर, यू विल फाइंड दैट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, आई डिडंट से यू आर स्टूपिड, पॉइंट कर दिया। हम सेकंड लाइन में चले गए, फर्स्ट वाले में हमने से के ऊपर जोर दिया, दूसरे वाले में हमने पॉइंट करके यू आर स्टूपिड, थर्ड वाले में हमने वैल्यू दी है कि हमने तुम्हारे बारे में बोला ही नहीं कि यू आर स्टूपिड, हो सकता है तुम स्टूपिड ना भी हो। आई डिडंट से यू आर स्टूपिड, यहां पे हमने जो फोर्स दिया है, हमने दिया है स्ट्रेस स्टूपिड के ऊपर, हमने उस वर्ड के ऊपर दिया है जो आपकी क्वालिटी बताना चाह रहे हैं। सेकंड वाले पे हम कैटेगरिकली ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम यू आर द स्टूपिड, और पहले वाले में हमने बोला ही नहीं है, तो हम अपने लिए ले रहे हैं कि हमने बोला ही नहीं है सी चीज। आई डिडंट से यू आर स्टूपिड, व्हाट आई मीन टू से इज, ये जो है से और यू और stupid, all these three words makes a lot of difference on the basis of the stress which you are giving on these three words in different sentences. So whenever we speak something, our voice modulation plays a very crucial role. Okay, coming to next, that is the total impact of a message breaks down. ये एक सर्वे रिपोर्ट है जो शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो, इट्स वेरी कॉमन बट स्टिल इट इज इफेक्टिव, कि इम्पैक्ट ऑन ऑफ एनी मैसेज इज जस्ट 7% विद वर्ड्स, कीप दिस थिंग इन द माइंड। मैंने कहा ना, झगड़े की बात कुछ नहीं होती, वर्ड्स में कुछ नहीं रखा, इट इज जस्ट 7%। 38% इज वोकल, आप किस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, आपका पिच क्या है बोलने का, आपका वॉल्यूम क्या है, आप किस टोन में बात कर रहे हैं, दैट इज 38%। बट the main thing which comes in this is 55% of your body gestures, of your movements, body movement. जैसे मैंने बोला, if you'll point the finger, now this 55% plays a lot of difference in the mind of the person who is standing in front of you. It can be through facial expression, it can be through your hand movements, it can be through your complete body language. 55% makes a lot of difference. So keep this thing in the mind. Whenever we talk with someone, our body language makes a lot of difference, and that is to be represented in the front of people who are there with you. Major areas of non-verbal behavior. जहां पे नॉन वर्बल बिहेवियर होता है, उसके मेजर एरियाज कौन से हैं, किन किन तरीकों से आप इम्पैक्ट डाल सकते हो। फर्स्ट इज आई कॉन्टेक्ट। आपने सुना होगा, बहुत लोग आके बोलते हैं कि whenever you want, if you are going in an interview, you must make an eye contact. फ्यूचर में अगर कभी हमारे इंटरव्यू के सेशंस हुए तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑन दीज थिंग्स इन डेप्थ, बट एट प्रेजेंट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट यस, आई कांटेक्ट मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस, बट कंटीन्यूअसली पियर्सिंग आईज शुड नॉट बी देयर। आप किसी से बात करें तो आंखें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आर पार हो जाए, सामने वाले को ऐसा फील हो। सो आई कांटेक्ट, यस इट इज रिक्वायर्ड, बट इट शुड नॉट बी द कंप्लीट आई कांटेक्ट। हम आपको एक चीज बता दें कि आई कांटेक्ट से यू कैन ड्रेन आउट द lies from the mind of the people who are in front of you. वो क्या झूठ बोल रहे हैं, आप केवल आई कांटेक्ट से उनके अंदर से निकलवा सकते हैं। ओके, सेकंड इज फेशियल एक्सप्रेशन। यस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप गुस्से होंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, आप खुश होंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। जेस्चर्स, यस, इफ यू आर मीटिंग समवन, योर जेस्चर्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन, यस, it also plays a very important role. Interview skills में we will take up this. Posture means the sitting style, how you are sitting in front of somebody. और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं। There are various ways to sit, but while giving the interview, while appearing for the interview, sitting posture makes a lot of difference. And the person who is taking your interview, उसके sitting posture से आप समझ जाएंगे कि what type of questions he is going to ask, what type of nature that person is having. इस लेवल तक आप इन चीजों को समझ सकते हैं, विच आर नॉन वर्बल बिहेवियर। ओके, केवल पोस्चर से आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का आपका इंटरव्यू होने वाला है। प्रॉक्सिमिटी, आप कितने क्लोज है सामने वाले के साथ, ये चीज भी बहुत मायने रखती है। ओके, सो दीज आर द पिक्स व्हिच कैन हाईलाइट ऑल दोस थिंग्स। Tips for effective communication. If you want, you people can note down these tips. They are very useful, and definitely in the coming future, you can implement on these things.
फर्स्ट इज स्पीक स्लोली। हम देखो बातचीत क्यों करते हैं, व्हाई वी कम्युनिकेट विद अदर्स, देयर इज ओनली वन रीजन, दैट दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर आप बहुत तेजी से बोलोगे, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा। अगर समझ नहीं आएगा तो देन व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम और हिज टाइम। बोलना है, धीरे बोलो। इस तरीके से बोलोगे सामने को समझ नहीं आए, जैसे मैंने भी इतना तेज बोला, ये शायद आपके ऊपर से निकल गया हो। बट द थिंग इज स्पीक स्लोली, पहला पॉइंट। सेकेंड, स्पीक क्लियरली। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे भी मैंने टिप में दिया हुआ है। कभी भी अगर आपके मुंह में कोई चीज है, इफ यू आर ईटिंग समथिंग, डू नॉट टॉक, फिनिश इट देन स्टार्ट टॉकिंग। हमें लगता है कि हम बड़ा क्लियर बोल रहे हैं। समटाइम यू नो व्हाट हैपन, हम फोन के ऊपर बात कर रहे हैं सामने वाले से एंड वी आर टॉकिंग ऑन फोन, हमें लगता है हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं। नो, वी आर नॉट टॉकिंग गुड। सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यू आर ईटिंग समथिंग, यू आर ड्रिंकिंग समथिंग। तो डोंट डू दैट। whenever you speak, speak clearly. थर्ड, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे क्या बात कर रहे हो। यू मस्ट नो दैट। अभी कोई ये बोले कि मैं चांद पे जाके आलू उगाऊंगा, आलू डाल के सोना निकालूंगा, ये चीजें बियॉन्ड इमेजिनेशन। ठीक है, तो यू मस्ट नो व्हाट यू आर टॉकिंग, ऑन विच टॉपिक यू आर टॉकिंग। यू मस्ट नो दैट। उस चीज का नॉलेज पूरा होना चाहिए। डू नॉट शूट इन डार्क। नेक्स्ट इज, आप जो भी बात बोलें उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए या उसका मीनिंग डबल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी इन दैट। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मिस्टर राकेश वी विल मीट टुमारो एट 9, सिंपल सा एक्सप्रेशन, वी विल मीट टुमारो एट 9। अभी जो राकेश है वो सुबह 9 बजे पहुंच गए मिलने के लिए पर्टिकुलर स्पॉट पे, वेयर एवर वी डिसाइड टू मीट। बट मैंने उसको बोला था कि शाम को आफ्टर डिनर वी विल मीट एट 9। अभी क्या हुआ, मैंने खाली 9 बोला, तो दैट 9 मेक्स ए कंफ्यूजन कि सुबह की शाम। अगर हम बोलता कि राकेश वी विल मीट एट 9 PM डॉट, या वी विल मीट एट 9 PM एट सो एंड सो प्लेस, और वी विल मीट एट 9 इन द मॉर्निंग, 9 AM, अभी मैसेज कंप्लीट है, पहले वाले में कंप्लीट नहीं। सो देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी इन दैट, देयर शुड बी नो डबल मीन्स एनी कंफ्यूजन और डबल मीनिंग। Yes, here comes the voice modulation, convincing skill, negotiation skill। दोनों चीजों के अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब ये है, अच्छा आपने कभी देखा होगा कि कभी अगर हम एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, हमारे एक्सीडेंट ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे पे होते हैं या सिटी में होते हैं। इफ यू विल ऑब्जर्व दैट, यू विल सी दैट मैक्सिमम एक्सीडेंट व्हाट आई मीन टू से, जिसके अंदर डेथ होती है, केवल टच होना इज नॉट एन एक्सीडेंट, जिसमें डेथ हो जाती है, एक्सट्रीम स्टेट, ये ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे पे होते हैं, ना कि सिटी में। यू नो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हमारी जो राइड होती है वो मोनोटोनस होती है, उसमें कोई टर्निंग है नहीं। आपने एक्सीलेटर पे पाव रखा, पाव रखते रखते 80, 90, 100, 120, 130, हमें पता ही नहीं लगता कब गाड़ी 130, 140 पे चली जाती है। विद ए लिटिल बिट, यू नो, जस्ट अ लिटिल टर्न इन द स्टीयरिंग, यू विल फाइंड कि इट विल टॉपर डाउन। गाड़ी जो है आपकी पलटी मार जाएगी या किसी के साथ टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। और वो एक्सीडेंट इतना स्ट्रॉन्ग, इतना जबरदस्त होता है कि डेथ रेट्स तक जाते हैं, उसके जब इंक्रीज होते हैं। बट इफ यू आर इन द सिटी, आप कभी उस लेवल पे गाड़ी चला ही नहीं सकते, आपकी मोनोटोनस राइड नहीं होगी। वहां मोनोटोनस होने से नींद आ सकती है, सिटी में यू कैनॉट डू दैट, क्योंकि 2 मिनट में स्पीड ब्रेकर आया, 2 मिनट में रेड लाइट क्रॉसिंग आया, 2 मिनट में किसी ने आपको ओवरटेक किया, किसी ने कट मारा, आपको बार बार ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। मतलब आपका जो स्पीड का जो ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलता है। बट ऑन एक्सप्रेस हाईवे इट गोज लाइक दिस स्ट्रेट, एंड व्हेन द थिंग्स गोज लाइक दिस इन अ मोनोटोनस वे, दे आर वेरी डेंजरस। ईसीजी मशीन के अंदर भी ये स्ट्रेट लाइन इज नॉट अप्रिशिएबल, ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, ट्रफ्स, पीक्स, दे आर अप्रिशिएटेड। सो सिमिलरली वॉइस मॉड्यूलेशन में भी इफेक्टिव वो वॉइस मॉड्यूलेशन है जिसके अंदर अप्स एंड डाउन्स है। If your voice modulation is monotonous, अगर आप एक टोन में बात कर रहे हैं, people will feel bored, people will sleep। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग लेक्चर देने आते हैं ना, तो पोडियम पे खड़े होकर एक टोन में देख के बोलते रहते हैं,
and things goes on like that, and people start yawning and they feel bored. तो आपके उसमें अप एंड डाउन होने चाहिए। जो मैंने पीछे आपको दिया, आई डिडंट से यू आर स्टूपिड, अभी से के ऊपर मैंने मॉड्यूलेट कर दिया। तो कभी भी जब भी आप किसी से बात करते हैं, यू मस्ट नो ऑन विच वर्ड यू हैव टू मॉड्यूलेट, यू हैव टू इंक्रीज योर वॉइस। ठीक है, झगड़ा होता है तो हम ऊंची आवाज में बात करते हैं, सामने वाला बोलते हैं ना आवाज नीचे कर, दैट इज मॉड्यूलेशन। सो इफ यू वांट टू कन्विंस समवन, यू मस्ट modulate, you must stress on the brand, on the USP of your product. That will make a lot of difference. Okay, only then it can be in the mind of the person. Be a good listener, as I told you earlier कि हम इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा है, your I can say 25% job is done. और लिसनिंग स्किल डज नॉट मीन कि आप चुपचाप क्यों बैठ के सुन रहे हैं, नो। Keep on nodding like this. Okay, sir. Great, sir. Wonderful. Is it? Okay, yes, yes. I can do that. Let me note down. सामने वाले से जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो उसको कन्विंस करना आसान हो जाता है, बिकॉज दैट पर्सन नोज दैट द वे यू आर लिसनिंग, इट मीन्स यू आर शोइंग द इंटरेस्ट। तो आप उसके अंदर से, स्पेशली नेगोशिएशन स्किल, अगर आप सामने वाले के साथ नेगोशिएट करने जा रहे हैं कुछ चीज, तो पहले उसकी सारी बातें सुनिए, तो आपके लिए बार्गेन करना, नेगोशिएट करना इजी हो जाता है। यू कैन कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली लेटर ऑन, क्योंकि उसके पास बोलने को कुछ नहीं है। देन बॉल इज इन योर कोर्ट, यू कैन इजीली कम्युनिकेट द थिंग्स वेरी इफेक्टिवली विद मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, बट क्लियरली एंड स्लोली। ओके, सो बी ए गुड लिसनर। देन कम्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टॉक व्हाट पीपल वांट टू लिसन। ब्रैकेट में मैंने लिखा है अननोन। इसका मतलब ये है, आप कभी भी अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, यू कैन नॉट सिट क्वाइट, यू नो। अगर आसपास पैसेंजर्स बैठे हैं, आप चुपचाप बीच में बैठे हो, 12-15 घंटे का सफर है, इट डजंट मेक एनी सेंस। यू शुड मेनली जेल अप विद द पीपल हु आर सिटिंग देयर। उन लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत शुरू करो। बातचीत करने में कभी भी अगर आप बोलोगे ना कि सामने कोई बैठा और बोलूं ये मैंने 2500 की टी शर्ट ली है, ठीक है, ये ट्राउजर मेरा इतने हजार का है, ये घड़ी मेरी 10,000 की है, इफ आई टॉक लाइक दिस, द पीपल विल फील बोर। वो लोग बोर होने शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी हमको सामने वाले से बात करनी है, फर्स्ट थिंग इज यू शुड अप्रिशिएट देम ऑन एनीथिंग। कुछ अच्छा लगा आपको, पहना है उसने, अच्छा, अप्रिशिएट दैट, and you should talk those, you should start those topics which people want to listen. अभी आपने देखा होगा, ये जितने भी कुछ लोग आके लेक्चर्स वगैरह देते हैं ना, सब कविता पाठ करते हैं रामायण वगैरह या दूसरी चीजें, everybody knows what is रामायण, everybody knows what is गीता, but still people sit there in lakhs, in thousands. What is the reason behind it? Because they are good speakers. They are good speakers and they speak, they use those things which people want to listen. किस टॉपिक पे रामायण के जोर देके लंबे टाइम तक एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर वो ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि लोग उन चीजों को सुनना चाहते हैं। So whenever you talk with someone, especially the unknown people, talk on those topics which they want to listen. Okay, coming to the next, an intention of connection. जब भी आप किसी से बात करें, एक चीज ध्यान में रख के चलें कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसके पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए कि इसके साथ हमारे टर्म्स लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमारे रिलेशंस लॉन्ग टर्म बनाने हैं, लॉन्ग टर्म चलेंगे, स्पेशली इन मार्केटिंग फील्ड, हम किसी से भी बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई इससे बिजनेस अच्छा मिल जाए, तो इन विद दैट इंटेंशन वी टॉक विद दोस गाइस। इवन आजकल तो हर कंपनी में पर्सनल रिलेशन ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम यही है, वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली कंपनी को कनेक्ट करते हैं, और वहां पे ये चीजें निकल कर बाहर आती हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशंस आप उनके साथ बनाना चाहिए। सो एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, व्हेनेवर यू टॉक विद समवन, दिस इंटेंशन शुड बी देयर इन योर माइंड, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द नीड्स और विशेस। आपने किसी से बात कर रहे हैं, उसने एक क्वेश्चन किया, आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर रहे, आपने कुछ और कहानी बनानी शुरू कर दी। अभी किसी ने बोला कि मुझे ना यहाँ पे मकान चाहिए इस एरिया में, एंड फॉरगेट अबाउट द मकान, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वडोदरा, कंप्लीट वडोदरा। अरे भाई, उस एरिया के बारे में बताओ जो उसकी नीड है। मकान जिस एरिया में चाहिए
वहां की क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं. अब ही इज ऑलरेडी इन वडोदरा, then why you're talking about those things? So understand the need of an individual, what they want. Make requests that are specific and positive. जब भी आप किसी से बात करते हैं, you want some sort of favor or something else, in that case it should be positive and specific and to the point. And to the point. Convert your communication in your favor. What is the basic thing in that? How to take out yes or no. These two words make a lot of difference. Now, how it is possible? See, if I am talking with someone and I keep on asking in between, do you agree with me? Am I correct? Is it the right way? I hope you will agree with me. Sir, as you know, this thing is happening like this. अभी ये जितने मेरे क्वेश्चंस हैं ना, do you agree with me? Yes or no? I hope you will agree with me. इन सब में देखो, सामने वाला ना चाहते हुए भी आपको साथ yes में नोट करेगा like this. Okay. Now the thing is, when the person is nodding like this, जब बार बार वो आपके साथ yes में कर रहा है, हाँ 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 हाँ, तो फाइनल जो डिसीजन होगा उसके अंदर 60 to 70% आपका ये नोडिंग जो है सामने वाले का ये काम करता है. एंड थिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इन योर फेवर. आपने सुना होगा कि पानी की धार अगर एक पत्थर पे 20 साल तक पड़ती है तो वो टूट जाता है. क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस धार पड़ रही है. आप सामने वाले से बार बार यस 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 निकलवा रहे हो एंड यू जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ दिस टाइप. जब भी हम किसी से नेगोशिएशन के पॉइंट पे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो जस्ट कीप दिस थिंग इन द माइंड दैट आस्क सच क्वेश्चंस इन बिटवीन व्हिच विल सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द पर्सन विद अ यस. सर, एज यू नो वेरी वेल, अभी ऐसा बोला, वो ये कभी नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता, या निकला उसके मुंह से यस. और ये जो यस है उसकी ईगो सेटिस्फाई करके आप उसको अपने फेवर में ले रहे हैं जो उसको पता भी नहीं लगे. एंड वट एवर आई एम सेइंग दिस yes or no type of things, I am doing it in my career, I am doing it in my life, I am doing it in my business, and it is happening. These things are tried and tested. Of course not 100%, but yes, 80 to 90% it is happening. So you can try this. आपने देखा होगा कभी कभी कोई आके आपके सेशंस लेता है ना, क्लास वगैरह में कहीं पे भी, तो बोलते हैं इजंट डू यू एग्री विद मी, यस और नो. ये क्वेश्चन सामने से आता है आपकी तरफ और हम ना चाहते हम यही बोलते हैं, होता है ना. सेकंड इज नो. अगर सामने वाला नो बोलता है वो नो भी आपके फेवर में है. वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन इज फुली पैक्ड, जैम पैक्ड. ट्रेन में एक बर्थ के ऊपर 3 लोग बैठते हैं, 3 की जगह ऑलरेडी 6 बैठे हुए हैं. अगर आप उसको बोलेंगे ना जो लास्ट में बैठा है कि बॉस थोड़ी सी जगह दे दे मैं यहाँ बैठ जाऊं, बोलेगा भाई साहब जगह नहीं है, डोंट सिट हियर. लेकिन इफ यू विल टॉक लाइक दिस, सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं, इंस्टेंट आंसर विल बी नो. और वो जो नो है वो आपके फेवर में. सर विल यू माइंड इफ आई सिट हियर, सर विल यू माइंड इफ विल टेक दिस माउथ. इंस्टेंट आंसर नो आता है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड एक चीज दिमाग में चल रही होती है और वो होती है कि मेरे को तो इसका आंसर नो ही देना है क्योंकि ये सीट मांग रहा है. बट द वे यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, the way you are asking the question, answer will be no, but it will be in your favor. Second thing, it shows the etiquettes. आपने बहुत अच्छे से बोला सर आप इस चीज के लिए बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं आपका ये माउस ले लूं. विल यू माइंड इफ आई टेक दिस नोटबुक. अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट पर्सन विल से नो एंड दैट विल बी इन योर फेवर. So in coming future, always use yes or no. But yes, one more thing is there that yes जो है इसके साथ आपका हेड भी ऐसा नोड होना चाहिए. सर डू यू एग्री विद मी, यस और नो. अगर आपने बोला यस और नो, वो बोलेगा नो. क्यों? क्योंकि 55% बॉडी लैंग्वेज, 7% वर्ड्स. तो हमको किसको लेना है? 55 प्लस 7, 63. ठीक है, 62. तो हमको इस तरीके से बात करनी है. डू यू एग्री विद मी, yes or no, and then eye contact with a smile on your face. सामने वाला 100% आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही देगा. ट्राइड एंड टेस्टेड, यू कैन ट्राई इट.
Okay, it will be in your favor. Second thing is always use these two words, sorry and thank you. अंग्रेज ना हमको दो चीजें गिफ्ट में देकर गए हैं, फ्री एंड जाते हुए बोल भी गए थे कि बॉस इनको फ्री में आप लोग यूज करें, डू नॉट इन्वेस्ट ऑन दीज थिंग्स, यू विल गेट द रिजल्ट्स एंड यू कैन ट्राई दैट. आप खुद सोचना, दिमाग में मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं कि आप कितनी बार थैंक यू बोलते हो. पहला थैंक यू, क्या हम सब्जी वाले जो बाहर आते हैं, वेजिटेबल हॉकर्स, क्या हम उनको थैंक यू बोलते हैं? हम किराना स्टोर पे जाते हैं, जनरल स्टोर पे, डू वी से थैंक यू? हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, कभी हमने उनको थैंक यू बोला? हम लिफ्ट में बैठते हैं, लिफ्ट के अंदर जाते हैं, कभी लिफ्ट मैन को थैंक यू बोला? हम ऑटो रिक्शा में गए, हैव वी एवर सेड थैंक यू टू दैट पर्सन जो ऑटो रिक्शा लेकर गया? अरे यही सोच के थैंक यू बोल दो कि वो आपको सेफली ले गया भाई, कहीं टक्कर मारा था बीच में तो क्या होता? से थैंक यू. लिफ्ट में जा रहे हो, एटलीस्ट उसने आपको एक सर्विस दी है, से थैंक यू. बस के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो, कंडक्टर को थैंक यू बोलो. कंडक्टर को छोड़ो, कभी ड्राइवर को थैंक यू बोल के देखो. बस से उतरो, दूसरी साइड से जाओ, ड्राइवर विंडो पे, से थैंक यू एंड यू जस्ट सी द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्सन, हाउ हैप्पी दैट पर्सन विल फील कि किसी ने तो मुझे थैंक यू बोला. मैं सुबह से लेकर रात तक धूप में, गर्मी में, दिन में, रात में गाड़ी चला रहा हूं. नोबडी सेज दैट. आप बोलो और थैंक यू के साथ ये जरूर बोल दो, बॉस बहुत अच्छी गाड़ी लेकर आए, राइट टाइम लगा. These gestures makes, these type of words makes a lot of difference. दो वर्ड्स का है ये थैंक यू, लेकिन इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस. हम थैंक यू किसको बोलते हैं पता है? होटल में जाएंगे, 2000 का खाने का बिल आएगा, थैंक यू. पेमेंट भी कर रहे हैं, थैंक यू भी बोल रहे हैं. फ्लाइट में जा रहे हैं, पानी का गिलास एयर होस्टेस ने दिया, थैंक यू मैडम. इट्स अ फैक्ट. वी आर नॉट सेइंग दीज थिंग्स टू दीज पीपल, जस्ट ट्राई दैट. आप रोड साइड चाय पीते हो, कभी आपने उस लड़के को थैंक यू बोला जो आपके लिए चाय लेके आया? नहीं बोला. ट्राई दैट. अपना रेड लाइट क्रॉसिंग पे ट्रैफिक पुलिस वाला जो ट्रैफिक रोकता है और फिर आपको आगे भेजता है, कभी विंडो से बाहर निकाल के ना उसको थम्स अप करके थैंक यू बोलो. देखो, these things makes a lot of difference. Now when we talk about sorry, in case of sorry also, हम सॉरी तब बोलते हैं जब हमारा एक, मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग्स ली है कम्युनिकेशन पे, हर जगह एक ही स्टेटमेंट निकल के आता है, सर जब मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे, तो ये जो मुझे है ना, आई, इसको हटा दो. आप सामने वाले के शू में भी पांव डाल के देखो कि वो क्या सोच रहा है. बट मींस व्हाटएवर यू सेड. सॉरी हमेशा हम तब बोलते हैं जब मुझे बुरा लगता है, हमेशा. नो, सॉरी आप तब भी बोलो जब सामने वाले के नजरिए से सोचो. सॉरी इतना बढ़िया वर्ड है कि ये बड़े बड़े झगड़े मिटा देता है, लेकिन इसके पीछे एक हिडन ईगो होता है जो आपको नीचे लाना पड़ता है. और कम्युनिकेशन के अंदर सॉरी एंड थैंक यू, ये दो जो चीजें हैं ना, दे कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ. बट ईगो को साइड में लाना पड़ेगा. सो ऑलवेज यूज सॉरी एंड थैंक यू एज मच एज पॉसिबल, एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, एवरीवेयर. इवन आपके घर जो कचरे वाली पेटी उठाने आते हैं ना, ट्रक जो आता है कॉर्पोरेशन का कचरा लेने के लिए, आप उसको तो दे देते हैं कचरा, कचरा तो अंदर वो डाल रहा है. हैव यू एवर ट्राइड कि आपने कचरा लेके डाल दिया अंदर? नेवर. यू विल नेवर डू दैट. ट्राई दैट. कभी नहीं करोगे आप. अरे तो उसको तो थैंक यू बोलो, अगर वो आपसे ना ले तो क्या होगा? से थैंक यू. क्लियर? दीज टू वर्ड्स, यू नो, दीज आर द गोल्डन वर्ड्स. ये हमेशा यूज होने चाहिए. एंड यस और नो, नेवर फॉरगेट दिस यस और नो. ये बड़े बड़े काम आपके क्लियर करवा सकते हैं. आई कॉन्टैक्ट. नाउ दिस आई कॉन्टैक्ट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज मैंने आपको बोला कि उसके थॉट प्रोसेस, उसका झूठ सच आप आंखों से पकड़ सकते हो. सो दीज आइज कैन गिव क्लूज टू अ पर्सन्स थॉट. व्हेन समवन इज एक्साइटेड, पीपल जो होता है वो डायलेट हो जाता है 4 टाइम्स टू द नॉर्मल साइज. ये कुछ स्टडीज हैं जो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है. एन एंग्री और नेगेटिव पर्सन मूड कॉजेज द पीपल टू कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे करके आंखें हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और खुशी में ऐसे बड़ी हो जाएंगी आंखें. तो दिस मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस एंड यू कैन इजिली जज दैट थिंग.
ठीक है. सो दीज आर सम फेशियल एक्सप्रेशंस फ्रॉम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि खुशी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, all those things, pressure है, irritation है, all those things you will find here, and these things can make a lot of difference in the overall life of an individual. Facial expressions कौन कौन से होते हैं? 6 there are basic facial categories, facial expressions categories. First is happiness, second is udasi, sadness, anger, disgust, सरप्राइज एंड फियर. ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है ना, दीज फेशियल एक्सप्रेशन यू कैन इजीली जज ऑन इंडिविजुअल्स फेस. देयर आर वेरियस जेस्चर्स, इग्नोरिंग, लीव इट, आई टेक केयर, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ठीक है, लीव इट, इट्स ओके, एंड फ्रस्ट्रेटेड, जाने दो, इग्नोर करना जिसे कहते हैं ना आप लोगों की भाषा में, कॉलेज लैंग्वेज में इग्नोर मार, इग्नोर इग्नोर मार, ये वो दिख रहा है आपके सामने. So gestures communicate as effectively as words, sometimes even better. Gestures supports the verbal communication. जब भी आप gestures का यूज करते हैं, communication level आपका और better हो जाता है, strong हो जाता है. तो use communications में हमेशा ये चीज. अभी देखो, communication is not only face to face, it is also through telephone. टेलीफोन एटिकेट्स में भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. इट प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेलीफोन एटिकेट्स. अब वो क्या चीज है? फर्स्ट इज, ये एक एग्जांपल शो कर रहा हूं, दिस इज अ सर्वे रिपोर्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप. 42% ऑफ द कस्टमर्स, ये समझने वाली चीज है, 42% ऑफ द कस्टमर्स स्विच टू अदर ब्रांड बिकॉज द रूड बिहेवियर ऑन फोन बाय द सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस, अगर आपने कॉल किया कॉल सेंटर पे और वहां से बड़ा रूडली आपको रिप्लाई मिला, तो कस्टमर क्या होगा? वो इरिटेट होकर दूसरी ब्रांड पे क्लिक हो जाता है. ऑन द अदर साइड 73% लव्स द फ्रेंडली नेचर ऑफ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव. वहीं पे ऑन द अदर साइड अगर आप कामली अच्छे से बात कर रहे हैं किसी से, मेनली बिकॉज यू डोंट नो, फोन के ऊपर हमें पता नहीं है सामने वाला किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, तो उस केस में इफ यू आर टॉकिंग फ्रेंडली, कामली, एनर्जेटिकली, पॉजिटिवली, तो सामने वाला होता है ना, थोड़ा सा उसका गुस्सा वगैरह अगर है, वो थका हुआ है, इरिटेटेड है, तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, काम डाउन हो जाता है. सो दैट इज द रीजन इट इज मेंशन्ड 73% पीपल दे लव द फ्रेंडली नेचर ऑफ द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव. एंड यस, ये तो हमने कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों पे और हम लोगों पे इंडिविजुअली भी यही चीज इंप्लीमेंट होती है कि व्हेनेवर वी टॉक विद समवन, वी शुड नॉट टॉक एग्रेसिवली. Why telephone etiquettes are important? First thing is, yes, it creates a very good first impression. अभी आपने किसी को गुस्से बोला, हेलो बोल, अगला बोलेगा यार इसको तमीज नहीं है. उसकी जगह आप विश करते हो सामने वाले को, then you talk nicely, it makes a lot of difference. Then it shows the professionalism on the other side. When you're in a company, it helps in increasing the customer's faith and loyalty. अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द फेथ एंड लॉयल्टी ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड यस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग वो भी इससे इंक्रीज होता है, क्योंकि आप उसकी हर चीज सॉर्ट आउट कर रहे हैं. बट ऑन द अदर साइड, अगर आप पर्सनल किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वहां भी ये चीज अप्रिशिएट की जाए. टेलीफोन एटिकेट्स में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that first greetings should be friendly. जब भी हम किसी से बात करते हैं, फ्रेंडली वे में बात करें, ग्रीट करें उसको. वॉइस मॉड्यूलेशन, यस, हर जगह पे रोल प्ले करती है ये, इवन फेस टू फेस और व्हेन यू आर नॉट मींस यू आर टॉकिंग ऑन फोन, देन आल्सो. एक्टिव लिसनिंग, अभी देखिए एक्टिव लिसनिंग में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड, इफ यू आर टॉकिंग विद समवन हु इज स्टेइंग ओवरसीज, ऑस्ट्रेलिया, आपने फोन लगाया, आपने यहां से बात करना शुरू कर दिया, सामने वाले ने बोलना शुरू किया, यू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की जो कॉल्स होती हैं उसके बीच में कुछ सेकंड्स लगते हैं ट्रांसफर होने में. उस बीच में अगर आप कॉन्टिन्यूसली बोलते रहोगे तो आपको आधी बात समझ आएगी, आधी बात समझ नहीं आएगी. सो व्हेनेवर वी टॉक विद समवन, वी मस्ट, when the person on the other side is speaking, you just
keep quiet. When you start talking, that person will be quiet. सुनो सामने वाले की बात, ये नहीं कि हम ही बोलते रहे, सामने वाला बोल रहा है फिर भी हम बोल रहे हैं. So that is not active listening. Active listening, again, it enhances your relationships. Perfect and appropriate closing. जब भी आप फोन कॉल ऑफ करते हैं उस समय give some respect. Thank you very much sir, thanks for sparing the time. या अगर कोई अपना दोस्त ही है उसके साथ भी आप फ्रेंडली वे में whatever is common in between you, आप उस तरीके से अपनी क्लोजिंग कर सकते हैं. There are two types of call, you know. दो प्रकार की कॉल होती है. फर्स्ट इज रिसीविंग ए कॉल, सेकंड इज डायलिंग टू अ कॉल. दो टाइप में कॉल होती है. अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी इमेज इस पे भी रिफ्लेक्ट करती है. कुछ जगह क्या होता है ना, घंटी बज रही है बज रही है बज रही है बज रही है बज रही है, नोबडी इज गोइंग टू पिक अप. फिर 10 कॉल के बाद एक बार किसी ने उठा लिया या रिवर्ट भी नहीं आता. तो रिसीविंग कॉल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड रिसीव द कॉल मैक्सिमम विद इन 3 रिंग्स. 3 रिंग के अंदर कॉल उठा लेना चाहिए. सेकंड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और योर फर्म. अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ये उससे रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको प्रोफेशनली लिया है. विद द फर्म इफ ए प्रोफेशनल कॉल. थर्ड इज पॉजिटिविटी शुड रेजोनेट इन योर रिप्लाई. जब भी आप किसी से बात करें ना, थोड़ा सा चार्ज होकर बात करें, एकदम ऐसे थके हारे ना बात करें, एक्टिवली. बिकॉज सामने वाला किस उसमें है, फ्रेम ऑफ माइंड में, उसको ताजगी देना है, तो आपकी तरफ से पॉजिटिविटी रेजोनेट होनी चाहिए, निकल के जानी चाहिए, फील होना चाहिए उसको, अरे यार इससे तो बात करके मजा आ जाता. ठीक है. एंड डायलिंग टू ए कॉल. जब भी आप किसी अननोन पर्सन को कॉल करते हैं रिलेटेड टू बिजनेस और समथिंग, को अपने को काम डाउन करें, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है. और उसमें काम डाउन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, डीप ब्रीथ और हाफ ग्लास ऑफ नॉर्मल या कोल्ड वाटर पीने के बाद काम डाउन, कॉल. Your way of talking will change. Greet effectively. Good morning, sir. How are you, sir? Can I take your 2 minutes? Introduce yourself or your firm if it's a professional call. Even on the other side, अगर प्रोफेशनल कॉल नहीं है, तब भी आप सामने वाले को अपना नाम बताने की हैबिट डालिए. Be it your brother, your sister, your friend, your parents, your colleagues, whoever. हमें क्या लगता है कि उसके स्क्रीन पे तो मेरा नाम आ ही गया होगा. अरे जरूरी थोड़ी ना आया होगा. हो सकता है उसका फोन फॉर्मेट हुआ, हो सकता है उसने नया फोन ले लिया, कॉन्टेक्ट नंबर भी ट्रांसफर नहीं हुआ. मेक अ हैबिट, और मे बी पॉसिबल दैट पर्सन इज ड्राइविंग, धूप में बाइक चलाते हुए नंबर देगा, नहीं लिखेगा. द बेस्ट थिंग इज मेक अ हैबिट, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, नाम पहले बताओ. मेक इट अ पॉइंट. नीरज बोल रहा हूँ, राकेश बोल रहा हूँ. देन उसके बाद सामने वाला बेशक बोले हाँ मालूम है यार तेरे को, इट्स ओके, उस चीज को आप इग्नोर करो, बट यू मस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. टेक परमिशन टू प्रोसीड फर्दर इन डिस्कशन. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी से भी बात करें उससे पहले एक बार उससे टाइम जरूर ले लें कि इज इट द राइट टाइम टू टॉक, कैन आई टेक योर 2 मिनट्स. अभी बात हो पाएगी क्या, क्या 2 मिनट के लिए आप टाइम स्पेयर कर सकते हो. अभी सपोज somebody is sitting in a very important meeting and you just start talking non-stop, that will irritate. बिजनेस कॉल्स में तो ये स्ट्रिक्टली नो है, यू मस्ट टेक परमिशन. इवन इन पर्सनल कॉल ऑल्सो, आपको पता नहीं है सामने वाला कहाँ पे है, आप अपना शुरू हो गए बिना कुछ इंट्रोड्यूस किए, डायरेक्ट शुरू हो गए. सो दैट में इरिटेट द पर्सन. द राइट वे इज इवन विद योर रिलेटिव्स यू मस्ट टेक परमिशन. और परमिशन ऐसा नहीं है कि मे आई टेक परमिशन, नो. कैन आई टेक योर 2 मिनट्स, यार फ्री हो 2 मिनट बात हो सकती है क्या आपसे, बस इस तरीके से पूछना है, नथिंग मोर देन दैट. डूज, essential of communication, essentials. ये अगर आप चाहो तो यू कैन राइट डाउन. फर्स्ट इज डूज में आएगा, यूज प्रिसाइज, मेमोरेबल एंड पावरफुल वर्ड्स. जब भी हम किसी से बात करते हैं, ये बेसिकली फोन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, essentials ऑफ कम्युनिकेशन. यू शुड बी कंप्लीटली प्रिसाइज. जो कुछ बोल रहे हो वो इस तरीके से रखें कि उसके दिमाग में चला जाए. फेस टू फेस कर रहे हैं तो आपके जेस्चर्स भी काम करेंगे, तो उसके दिमाग में जाएंगे. विद सम पावरफुल वर्ड्स, इफेक्टिव वर्ड्स रादर. सपोर्ट योर वर्ड्स विद विजुअल एड्स. और विजुअल एड का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसके सामने कोई फोल्डर, कोई बुक, कोई चीज खोल के दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपके जेस्चर्स इफेक्टिव हैं, वो भी साथ में काम करेगा. गिव एग्जाम्पल्स, शेयर एग्जाम्पल्स.
makes a lot of difference. And example should match with your statement. आई कांटेक्ट बात करते हुए, आई कांटेक्ट का रीजन पता है क्या है? आई कांटेक्ट जो होता है ये सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता दाएं बाएं के लिए, इसलिए आई कांटेक्ट थोड़ा आप साइड में देखो, फिर आई कांटेक्ट, फिर साइड में देखो, फिर आई कांटेक्ट, 100% आई कांटेक्ट नहीं होता। बी अ एक्टिव लिसनर, जैसा पहले बोला, नेवर नेवर ईट और ड्रिंक व्हाइल स्पीकिंग। फोन पे तो स्ट्रिक्टली नो क्रॉस, कभी गलती से भी फोन के ऊपर बात करते हुए खाना पीना नो, बिल्कुल नहीं करना। इन जनरल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फोन पे तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट थिंग इज, हमेशा ध्यान रखें वेरी कॉमन प्रिंसिपल दैट इज KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, टू द पॉइंट। कहने का मतलब है अवॉइड इंटरप्टिंग, अगर सामने वाला बोल रहा है तो बीच में मत बोल, नेवर टॉक इन बिटवीन, नेवर इंटरप्ट। एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन, सामने कोई बहुत सीरियस टॉक चल रहा है, वो आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है, you're smiling, है ना, सो दैट विल इरिटेट, डोंट डू दैट। कभी भी बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए। और इफ यू आर एग्रीइंग टू समथिंग, अगर आप अफर्मेटिव हैं किसी चीज के लिए, नॉट द हेड, यस, ओके, ट्रू, आई एग्री विद यू, positivity. It shows that you are a very active listener. You are showing interest, whatever the person is saying in front of. Okay. Essentials of communication में दूसरी चीज जो आती है, last but not the least, that is don'ts. हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए. Do not use the technical terms or terminology which cannot be understood or which is not clear to the majority of people. अभी क्या हुआ, मैं एक स्पीच देने चला गया और मैंने उसमें ना बहुत सारी टेक्निकल ऐड कर दी बीच में, टेक्निकल टर्म्स और ये और वो। सामने जो लोग आए थे उनको केवल सिंपल सा चीज चाहिए था कि ये जो सामने जो वाटर प्योरीफायर है इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, सिंपल, इसमें होता क्या है, ये है क्या चीज वाटर प्योरीफायर, हमने तो पहली बार नाम सुना। अब आपने उस वाटर प्योरीफायर के अंदर उसके पूरे फिल्टर्स कैसे लगे हैं, क्या उनका साइज है, हाउ इट वर्क्स, आपने वो सारी चीजें डाल दी। या आरओ वाटर का प्लांट के बारे में बात हो रही है, रिवर्स ऑस्मोसिस, 90% लोगों को पता ही नहीं है आरओ क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, उनको कुछ नहीं मालूम, बट यू आर यूजिंग दोस टेक्निकल टर्म्स इन दैट, पीपल विल गेट कंफ्यूज, दे विल लूज द इंटरेस्ट। मैंने पहले बोला कम्युनिकेशन इसलिए किया जाता है कि सामने वाले को समझ आए। भाई अगर उसे समझ नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मिस्टर शशि थरूर इज अ मास्टर इन इंग्लिश, यू नो, उसकी जो इंग्लिश है ना सुपर्ब है, अप्रिशिएबल, लेकिन वही इंग्लिश कितने लोगों को समझ आती है, ये सोचने वाली बात। कहां पे वो इंग्लिश यूज करनी है, ये सोचने वाली बात। अगर वो एक जनरल पब्लिक में जाके यूज दैट लैंग्वेज, दैट टाइप ऑफ इंग्लिश, पीपल विल लूज इंटरेस्ट, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से निकल रहा है। वही अगर दैट पर्सन इज स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, सामने वाले को मजा, सुन रहा है, इंजॉय कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो कुछ वो बोल रहे हैं इट इज गोइंग इनसाइड द माइंड। That is the thing which makes the difference. So do not use such technical terms. Next is do not speak too fast or too slow, जो मैंने शुरू में बताया। Speak at a normal speed. Speak slowly का मतलब ये नहीं कि लंबा खींच के बात करना है, नो, लंबा खींच के बात करना, नॉर्मल वे में बात करना है, that the person should understand. Do not speak in inaudible surroundings as you won't be heard. ऐसी जगह पे बात मत करो जहां पे कि सुनाई ना दे, ठीक है, क्योंकि अपनी बात सामने वाले को सुनाई नहीं देगी तो उसको समझ के आया कुछ नहीं। सो डोंट डू दैट। नेक्स्ट इज डू नॉट अज्यूम दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स यू। कभी ये भी सोच के मत चलो, डू नॉट टेक इट एज ग्रांटेड कि मैं जो बोल रहा हूँ ना सबको समझ आ रहा है, मैंने एक टर्म बीच में यूज कर दी, वो अंडरस्टूड है, सबको मालूम है, नो, जरूरी नहीं है। तो आपको जब भी किसी से बात करनी है तो एक चीज दिमाग में लेके चलनी है कि ये हो सकता है 100% इसकी एक्सेप्टेंस ना हो, इसको परसीव ना कर पा रहे हो 100% हो, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है तो वी शुड एक्सप्लेन दैट, ताकि
इंटरेस्ट सबका डेवलप, एंड द लास्ट इज डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर। अगर कोई बोल रहा है तो बीच में मत बोलो, लेट हिम फिनिश, note down the points, and then you start. Clear? So this is what is don'ts. So do's and don'ts makes a lot of difference. And with this, I'll just finish my session here. Thank you very much for sparing your time. This is my contact number, and website is also there. I am from Vadodara, and I have my own sessions, my classes in Gotri area. अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कांटेक्ट करना है, गिव योर रेफरेंस फ्रॉम पारुल या पारुल से हैं, एंड यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट माय वेबसाइट. ओके, एट प्रेजेंट we will just finish this session here, and if you have any queries you can revert. Thank you very much to all of you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your Thank you very valuable much. time. And also, I would like to thank our principal, sir, Professor Jatin Vaidya, to provide the endless support and the motivation of take such a kind of innovative, such list but not last least. Thank you all our participants. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.